Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. As we were discussing the cellular techniques, and we have discussed the two techniques, that is microscopy and then staining. Here we are with the other cellular techniques, that is chromatography. So, as the name indicated, that the chromatography, in which the chroma means color and graphy mean to write. So, it is the set of lab technique used for the separation of mixtures, usually the color mixtures. Or we can say the separation of one type of molecule from the other is known as chromatography. नाउ अगर आपके पास कलर मिक्सचर है, सपोज़ अगर आप ये कहें कि आपको अननोन मिक्सचर मिला है जिसमें रेड, पिंक, ब्लू, वट जो भी कलर्स यूज़ हुए हैं, आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि विच कलर्स आर प्रेजेंट इन इट. सो वी विल यूज़ द टेक्निक दैट इज़ क्रोमेटोग्राफी टू सेपरेट द कलर मिक्सचर. There are two factors on which the chromatography is dependent. First is solubility and second is molecular mass. सॉलिबिलिटी मीन्स, देखिए हमने कलर की सेपरेशन करनी है. सो हमारे पास कुछ मीडियम होंगे जिनमें हम कलर को सेपरेट करेंगे. तो वो मॉलिक्यूल्स जो कि ज़्यादा सॉल्युबल होंगे अपने मीडियम के साथ, तो वो ज़्यादा जल्दी मूव करेंगे, ज़्यादा इजीली सेपरेट हो जाएंगे. ठीक है. और जिनकी सॉलिबिलिटी कम होगी, दे विल टेक द मोर टाइम टू गेट सेपरेट. सो सॉलिबिलिटी इज़ वन फैक्टर विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड सो द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर. Then we have the molecular mass. मालिक्यूलर मास इज़ आपको पता है कि किसी भी क्लोरोफिल मालिक्यूल को सपोज अगर हम देख लें, उसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है एंड देन मैग्नीशियम भी है. सो डेफिनेटली इट हैज़ सम मालिक्यूलर मास. ठीक है. सो दैट मालिक्यूल विच हैव द मालिक्यूलर मास लेसर देन द अदर मालिक्यूल will move faster and will have the more solubility than the molecule which have the more molecular mass and have lesser solubility. Okay, so these are the two factors on which a technique chromatography is dependent. Then we have medium. There are usually two medium. The first is mobile medium, which can be any liquid or the gas, and second is the stationary medium, which can be cellulose or the silica. Now why these mediums are used in this chromatography? So keep in mind that we have to separate the color mixture, and for that we need a proper apparatus that is called chromatography jar or any column to make the mixture separated. So for that we need a liquid mixture or a stationary medium to sustain the particles and to help in the movement of molecule. As we have discussed that there are the two factors on which the chromatography dependent. So it means those which are soluble in the mobile medium will move faster, and those which have some hindrance like higher molecular mass will move slowly. And then the stationary medium, it helps in the separation of mixture in case of column chromatography, which we are going to discuss. Okay, so these are the two mediums in which we can say that the chromatography work. So there are two types of chromatography. The first is the paper chromatography and second is the column chromatography. As far as the paper chromatography is concerned, it is the method used to separate the colored molecules or the substances in which a proper chromatography chamber is used on a filter paper. Then this method was discovered by Martin and Sainz in 1943 by separating the color mixture. It is a method of separating the mixture by using a moving solvent on a filter paper. Okay. सो हेयर इज़ द प्रोसीजर फॉर द पेपर क्रोमेटोग्राफी. बेटा आपके पास एक पेपर है, आपने उस पेपर को लिया और उसके ऊपर स्ट्रिप लाइक पेपर होता है, जैसे अब आपका वो होता है क्या कहते हैं फ़िल्टर पेपर. ठीक है. उस फिल्टर पेपर के ऊपर आपने हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ की है जो कि अबाउट आप स्केल रखें तो आपके पास 2 सेंटीमीटर अबव आ जाए पेज की एज से. ठीक है. वहाँ उसके सेंटर में आपने एक ड्रॉप, आपके पास जो भी मिक्सर है आपने उसको सेपरेट करना है, तो उसमें आपने एक ड्रॉप डाला. उसमें सारे कलर्स होने चाहिए बट दे कुड बी अननोन टू यू. ठीक है. द पेपर इज़ दैन प्लेस्ड इनटू अ सील कंटेनर, जो कि आपका क्रोमेटोग्राफी जार होता है, उसके अंदर आपने डालना है बेटा.
अब देखिए आपका जो पेपर है उसके ऊपर आपने कलर मिक्सचर डाला है, वो कलर खुद ब खुद पेपर के ऊपर मूव नहीं करेंगे, ठीक है। सो हियर द मिक्सचर एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज, दे नीड समथिंग टू गेट मूव, ठीक है। सो फॉर दैट यू हैव टू डिप दैट पेपर अप टिल द ड्रॉप ऑफ मिक्सचर इनटू अ मोबाइल मीडियम, एंड दैट मोबाइल मीडियम कैन बी द एसीटोन और इट कैन बी द एनी लिक्विड सोल्यूशन, ओके। जब आपने उसमें वो पेपर डिप किया वहाँ तक जहाँ तक कि आपके पास वो ड्रॉप आपने लाइन लगाई थी, तो उसके ऊपर कैपिलरी एक्शन के थ्रू वो कलर्स जो हैं जो मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट हैं, दे विल गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बेस्ड ऑन देयर सॉलिबिलिटी। जितना वो उस मीडियम मोबाइल मीडियम के अंदर सॉलिबल होंगे उतना जल्दी और फास्टर मूव करेंगे। एंड अगेन यहाँ पे उनकी जो सॉलिबिलिटी है इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन देयर मॉलिक्यूलर मास, ओके। So you can see here that this is a filter paper. ये आप देख सकते हैं ये फ़िल्टर पेपर है, इसको आपने डिप किया इस क्रोमेटोग्राफी जार, उसमें एक हैंगर है, उसके साथ आपने फ़िल्टर पेपर लगाया और इसको आपने, ये लिक्विड मीडियम है जिसके अंदर सॉल्वेंट के तौर पे वो यूज़ हो रहा है, आप इसको मोबाइल मीडियम कह रहे हैं, आपने वो इसके ऊपर इस पेपर को इसके अंदर डिप कर दिया और वहाँ तक डिप किया है बेटा जहाँ तक आपने इधर 2 सेंटीमीटर की लाइन लगाई थी, ठीक है। उसके ऊपर आपने ये कलर मिक्सचर डाला था और इस कलर मिक्सचर में कौन से कलर थे, दे कुड बी अननोन टू यू, ठीक है। बट आफ्टर द प्रोसीजर डन, उसके बाद आपने उस पेपर को निकाला, उस एयर में ड्राई होने के लिए छोड़ दिया और फिर आपने देखा कि ये कलर मिक्सचर्स जो हैं वो यूँ प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब इसमें देखें सबसे पहले आपको रेड कलर नज़र आ रहा है, देन पर्पल एंड देन ब्लू। तो इट मीन्स कि ये जो कलर हैं ये सेपरेट हो गए बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर मास एंड देयर सॉलिबिलिटी। नाउ द रेड कलर हैज़ मोर मॉलिक्यूलर मास एंड लेसर सॉलिबिलिटी इन मोबाइल सॉल्वेंट, ओके। सो इट विल मूव लेसर देन द ब्लू कलर विच विल मूव फास्टर देन द रेड कलर, ओके। सो वी हैव गेट सेपरेटेड द कलर मिक्सचर on a filter paper in a chromatography jar, so that's why this process is called paper chromatography, okay. So next will be the column chromatography. In column chromatography, it is a technique which is used to separate a single chemical compound from a mixture dissolved in a fluid. अब आपने किसी भी फ्लूइड के अंदर मिक्सचर जो आपका है उसको आपने सेपरेट करना है, ठीक है। एंड दैट वाज डन बाय द रशियन बॉटनिस्ट मिखाइल Civet in 1901. It separates the substances based on different absorption of the compound to the absorbent. As I have told, their solubility is one factor as the compounds move through the column at different rates which allow them to get separate in fraction, ठीक है। जैसे अभी हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी देखा था कि all the colors were moving on a different rates, ठीक है। सो यहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंट तरह से उनकी मूवमेंट होगी, that depends upon the their molecular mass and their solubility. So here is the procedure बेटा, a method of purification of compound. उसमें आपने क्या करना है कि एक आपने कॉलम लेना है जिसमें स्टॉप नाक होना चाहिए, जैसे आपने फिल्ट्रेशन के एक्सपेरिमेंट किए होंगे उनमें ब्यूरेट के साथ आगे नॉब होती है या उसका टैप होता है, तो सेम इसी तरह स्टॉप नाक उसमें होनी चाहिए जो कि उसमें मॉलिक्यूल्स को होल्ड रख सके अनटिल एंड अनलेस कि आप उसकी सेपरेशन नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। देन आपने पुट फनल और बीकर अंडर, यानी आपके पास जो भी ब्यूरेट है उसके अंदर आपने फनल या कर रखना है ताकि जो आपका कलर मिक्सचर है वो आसानी से सेपरेट हो सके। देन आपने उस कॉलम को सिलिका और सैंड से, जो कि स्टेशनरी मीडियम का काम करेगा, उससे फिल करना है और फिर आपने अब इसके ऊपर कलर मीडियम डालना है, ठीक है। वो कलर मीडियम मोबाइल मीडियम होगा। देखिए पेपर क्रोमेटोग्राफी में इसके ऑपोजिट होता है, ठीक है। वहाँ पे जो आप सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो मोबाइल होते हैं और कलर मिक्सचर जो है वो पेपर के ऊपर स्टेशनरी होता है, वाल यहाँ पे जो आपका कलर मिक्सचर है ये मोबाइल होगा और आप यहाँ पे एक स्पोर्टिंग मैट्रिक्स यूज़ करेंगे जो कि सिलिका या सैंड हो सकता है, ठीक है। द कंपाउंड विल स्टार्ट टू गेट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेक्शंस एंड मॉलिक्यूलर वेट। इंटरेक्शंस मीन दैट देयर सॉलिबिलिटी, क्योंकि जितनी उनकी इंटरेक्शन होगी उतना वो ज़्यादा, किसकी इंटरेक्शन, स्टेशनरी और मोबाइल मीडियम के दरमियान जो इंटरेक्शन है, ठीक है।
जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा उतना हो सकता है कि उनकी सॉलिबिलिटी कम हो और वो कम मूव करें, ठीक है, और इसी तरह उनका मॉलिक्यूलर मास भी, ठीक है बेटा। सो हियर इज़ एन एग्जांपल। देखिए आपके पास ये एक कॉलम है, उसमें आपने दरमियान में ये जो ब्लू से नज़र आ रहा है आपने स्टेशनरी फेज इसमें डाला और ऊपर आपने सैंपल को लोड कर दिया, ठीक है, और ये आपको इसका स्टॉप नॉक नज़र आ रहा है। नीचे आपने कोई भी बीकर या फनल रखा है उसमें से इस कलर मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। सो अब देखें, अब आपके पास तो ये मिक्सचर बना हुआ था ग्रीन कलर में, लेकिन इसमें कौन कौन से फर्दर कलर थे, दे वर अननोन टू यू, ठीक है। आपने उनको सेपरेट करके देखना है कि व्हाट डज दिस मिक्सचर कंटेन। सो अब आप देखें तो ये जो कलर मीडियम है it start moving on the sporting matrix or stationary phase in which the sample gets separated from each other. So यहाँ पे बेटा दिखे मोबाइल फेज जो है वो मूव कर रही है और सैंपल की सेपरेशन हो रही है, ठीक है। सो इन दैट आपके पास जो है वो ये ऑरेंज और येलोइश और ग्रीन कलर जो है ये आपके पास सेपरेट हो रहा है, ठीक है। अब इट मीन्स कि अगर हमारे पास लाइट ग्रीन कलर जो है ये पहले सेपरेट हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं थी, वो आसानी से मूव कर गया। और जो आपका ऑरेंज कलर है उसमें स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन है क्योंकि उसके अंदर मॉलिक्यूलर उसका एक तो मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, दूसरा उसमें ज़्यादा फिर जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी हो सकती हैं जिसकी वजह से उसकी सेपरेशन स्लोली हो सकती है, ठीक है। बट दिस इज़ द प्रोसेस फॉर द सेपरेशन ऑफ कलर मिक्सचर इन अ कॉलम. And then we have the application of chromatography. It is used in the field of biochemistry as separation of proteins, amino acids and sugar. अगर आपके पास ये देखें यहाँ पे अगर आपके पास है लोडेड सैम्पल तो इसमें कोई भी मॉलिक्यूल है आप उसको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर कलर डेरिवेटिव्स. ओके, देन वी कैन यूज़ इन ड्रग इंडस्ट्रीज फॉर रिमूविंग द इम्प्योरिटीज़ एंड सेपरेशन एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स. अगर आपके पास इसी तरह कोई ड्रग है और आपने उसमें से इम्प्योरिटी को रिमूव करना है तो यू कैन यूज़ एनी टाइप of chromatography to make them separated. And then the separation of photosynthetic pigments. Suppose कि आपके पास जो है वो यहाँ पे chlorophyll A और B है और आपने उनको separate करना है based on their molecular mass, so you can also go for this process. ठीक है, so we can say that chromatography is a process in which we have to separate the colored molecules or the mixture of the molecules based on their molecular mass and their interactions. Okay, so this is the topic important for your प्रैक्टिकल्स. अब देखें कि आपकी केमिस्ट्री में तो प्रॉपर इसका एक प्रैक्टिकल भी है एंड शायद बायो में भी, यस बायो में भी है, ठीक है. सो वी विल परफॉर्म इंशाल्लाह व्हेन वी विल हैव प्रॉपर क्लासेस, बट अप टिल देन फोकस ऑन द कंटेंट एंड राइट देम विद यू. ओके, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स. अल्लाह हाफ़िज़.